Hello students, welcome back to e-learning classes of Piano Mercy High School. In our previous video, we have completed the topic test for fats and test for protein. And today we are going to continue with our remaining explanation. So you all have to open your textbooks and come on page number 11. On page number 11, we are going to start with the second last paragraph from test for fats. What do these tests shows? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrition? Do you find any food item that does not contain any of these nutrition? This means जो हमने टेस्ट के बारे में पढ़ा और जो टेस्ट हमने देखे, क्या ये सारे जो प्रोटीन्स है, ये फैट्स, स्टार्च, क्या वो सब फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं? क्या सब खाना जो हम खाते हैं उन सब में न्यूट्रिशन होता है? क्या आपको कोई भी ऐसा खाना मिला जिसमें न्यूट्रिशन ही ना हो? We tested food items for 3 nutritions, that is carbohydrates, proteins and fats. We conducted or we saw the test of 3 nutritions and that were carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals. इसके अलावा और भी 2 nutrients होते हैं जो है vitamin और mineral that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? This means vitamins and minerals are also present in different food items, and why we need these nutrition we are going to study about the same. What do various nutrients do for our body? This means कि हमारी बॉडी के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या क्या काम करते हैं. Carbohydrates mainly provide energy to our body. The carbohydrates, they give us energy to our body. Fats also gives us energy. In fact, fats gives much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Fats also gives us energy. Fats भी हमें energy ही देती है, बल्कि carbohydrate से ज़्यादा energy हमें fats provide करते हैं. Food containing proteins are often called body building foods. The food which contains protein in it are called as body building foods. जो खाने में प्रोटीन होता है उसको हम body building foods भी बोलते हैं. Vitamins helps in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. The vitamins which are present in our food, they help us to fight against diseases, or they protect us from different types of diseases, and it also helps our eyes, bones, teeth and gums to stay healthy. जो विटामिन खाने में प्रेजेंट होता है उससे हमारी बॉडी बीमारियों से बची रहती है और हमारे आईज़, हमारे बोन्स, हमारे टीथ और गम्स जो होते हैं टीथ के, वो हेल्दी रहते हैं. Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There are different types of vitamins present in different types of food, and name of some vitamins are vitamin A, C, D, E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. इन सब विटामिन्स के अलावा एक और विटामिन का ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी. हमारी बॉडी को सब टाइप्स के विटामिन्स की ज़रूरत होती है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में. विटामिन ए कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्दी. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9. अलग अलग विटामिन्स हमें अलग अलग चीज़ें हमारी बॉडी के लिए देते हैं. जैसे कि विटामिन ए है, वो हमारी स्किन और हमारी आँखों को हेल्दी रखता है. विटामिन सी है, वो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है. विटामिन डी जो है वो हमारे बोन्स और टीथ के कैल्शियम को मेंटेन रखता है. और अलग अलग विटामिन्स होते हैं जो अलग अलग फ्रूट्स या अलग अलग खाने में प्रेजेंट होते हैं. यू कैन लुक
फिगर 2.6 उसमें वो फ्रूट्स या वो चीज़ों के नाम हैं जिसमें विटामिन ए है. फॉर एग्ज़ाम्पल पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, ऑयल दैट इज़ फिश ऑयल एक्सेट्रा. विटामिन बी किस किस में मिलेगा आपको? दैट इज़ वीट, राइस, लीवर. एंड विटामिन सी, that is you will get it from citric fruits, that is orange, tomato, guava, green chilli, lemon, amla etc. Whereas some sources of vitamin D are liver, fish, egg, butter, milk. ये अलग अलग विटामिन्स हैं और उनके अलग अलग सोर्सेज हैं. जैसे विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं, या तो विटामिन ए हमें जिससे मिलता है वो पपाया, कैरेट और मैंगो है. विटामिन बी हमें मिलता है वीट, राइस, लीवर से. विटामिन सी हमें मिलता है साइट्रिक फ्रूट्स से या फिर दूसरे फूड आइटम से, जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन एंड आंवला. जबकि जो विटामिन डी है वो हमें मिलता है बटर, फिश, मिल्क, एग और लीवर से. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी को छोटे छोटे अमाउंट्स में या छोटी क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं. फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, दिस मीन्स दैट द मिनरल्स, all of the minerals are essential for our growth and to maintain good health for our body. सारे मिनरल्स अपने आप में ही कुछ ना कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है. जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ को और हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. Now, in the figure 2.10, you are shown some of the sources of different minerals. Look at the figure. Some sources of iodine. The minerals or the sources of iodine are ginger, fish, salt and so on. ये कुछ सोर्सेज है जिसमें आयोडीन होता है. उसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जिंजर है, फिश है, सॉल्ट है, स्पिनच है. These all are sources of iodine. Next you can see sources of phosphorus. So milk, banana, chili, rice, all of these are sources of phosphorus. While as some sources of iron are apple, spinach, liver, etc. These are some sources of iron. Whereas some sources of calcium are milk and eggs. ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसे हमें अलग अलग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में डालना ज़रूरी है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करे और हमारी हेल्थ मेंटेन रहे. मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. काफ़ी सारे फूड आइटम्स या मोस्टली सब फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. While we were studying about protein, carbohydrates and fats, there was a table given to you, table 2.2, in which food items has carbohydrate, protein and fats were to be mentioned in the table. जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें टेबल 2.2 दिया गया था, जिसमें हमें किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो फिल करना था. So from that we can say that बहुत सारे न्यूट्रिशंस या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन खाने में प्रेजेंट हो सकते हैं. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. While as the raw material which we are taking to check the test of protein, starch or fats, we can find that the particular nutrient is present in large quantity. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we may say that rice is a carbohydrate rich source of food.
इसके एग्जाम्पल में जो राइस है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। रिच क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब के अलावा भी हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो हमारी प्लांट्स और फ्रूट्स जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, ये सब हमें डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो डाइजेस्टिव फाइबर्स जो है वो ये चीज़ में हेल्प करते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है? रफेज। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। एज आई ऑलरेडी सेड कि रफेज जो है, जो डाइटरी फाइबर्स है, वो हमें प्लांट्स और प्लांट्स के फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे मिलते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज के मेन सोर्स कौन कौन से हैं? होल ग्रेन्स, पोटैटोज, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर्स जो है, जो रफेज है, वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। बट इट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। जो डाइटरी फाइबर्स है वो भले हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, पर वो भी हमारी बॉडी में फूड कंपोनेंट के लिए बहुत ही असेंशियल है। This helps our body get rid of undigested food. Dietary fibers help us to digest the food which is not yet digested. जो dietary fibers होते हैं वो हमें हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं कि जो खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करे। Last paragraph of this topic on page number 14 is water helps our body to absorb nutrients from fruit. That is, जो पानी है, जो पानी हम पीते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने फूड से कंज्यूम किए हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जो पानी हम पीते हैं वो उस चीज़ में भी हेल्प आउट करता है। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रेजेंट है वो यूरिन से या स्वेट, दैट इज़ पसीने से, हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। नॉर्मली जो हमें पानी से, या तो जो पानी हम कंज्यूम करते हैं वो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। हम जैसे पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, चाय पीते हैं, वी ड्रिंक कॉफ़ी, जूस, ये सब क्या है? पानी का ही एक फॉर्म है। वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। हम खाना बनाते हैं तभी भी हम पानी उसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी कुक राइस, हम पानी के बिना चावल कुक नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी हैव टू बॉयल दाल, जब हम दाल बॉयल करते हैं तभी भी हमें पानी की ज़रूरत होती ही है। Let's see if there is any other source which provides water to our body. Now we are going to study in our next video, that is there any other source which provide water to our body. So students, this is all for today's video. Now the left out topics we are going to understand in our very next video. Till then, I want each and every one of you to read the chapter till page number 14, first paragraph, and I want everyone to mark the query if you all have. So we are going to meet in our next video. Till then, keep reading, keep completing your textbooks, notebooks if pending. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.